Good morning to everybody. Myself, Dr. R. C. Chauhan, Associate Professor, SPC Government College Ajmer. Today we will discuss BSc Part 2nd, Physics first, Unit first, and that the Thermodynamics and Statics Physics. And today we will be discuss the distribution of molecular velocities. Last turn we have calculated the total number of the molecules in between the velocity range c and c plus dc, and that is given as d and c equal to the 4 pi n a cube e raised to power minus bc square dot c square dot dc, where n is the number of the molecules per volume, a and b are the constant, c is the velocity of the molecules at any time. So now to calculate this d and c, we have to determine a and b, they are the constant. सो टू डिटरमाइन द ए का निर्धारण करने के लिए हम ये मानते हैं कि एकांक आयतन में कुल अणुओं की संख्या n है। तो इसका मतलब हुआ डी एन सी का यदि हम इंटीग्रेट करते थे इन बिटवीन 0 to infinity, सो दिस विल गिव द n. सो वी कैन राइट n इक्वल टू द 0 to infinity डी एन सी, दैट इज 4 pi n a cube e 0 to infinity e raised to power minus b c square dot c square dc, and there is the standard integral, that is the e raised to power minus bc square dot c square dc in between the 0 to infinity, that gives 1 by 4 of the pi b3 power half. So we can write n equal to the 4 pi n a cube 1 by 4 pi by b 3 by 2 pi have the power half. So on rearranging we can obtain that the a cube equal to the b by 5 3 by 2, and that is the give the relation between the a and b is a equal to root of the b by pi. Now our main problem is that to determine the constant b. For this one we have assumed that the velocity along the axis in between the u and u plus du, the number of molecules is nu, कि n u जो है उन अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन है जो x अक्ष के अनुदिश u व u प्लस डी यू वेग परास के मध्य चलते हैं. सो वी कैन राइट एन यू इक्वल टू एन फंक्शन ऑफ द एफ यू डी यू, एन ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम. सो द एफ यू डी यू दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है उस रेंज में पाई जाने की. सो एफ यू हमने निकाला था ए ई रेज़ टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर. सो वी कैन राइट एन यू इक्वल टू द एन ए ई रेज़ टू पावर माइनस बी यू स्क्वायर डी यू. अब यदि अणुओं का द्रव्यमान स्मॉल m है तो x अक्ष के लंबवत दीवार पर अणुओं द्वारा लगाया गया जो बल आता है, प्रेशर आता है, वो कितना होता है. देखिए कि यदि कण का वेग u है, m इसका संवेग हो गया, तो इस दीवार पे जो आपतन संवेग हो गया, इंसिडेंट मोमेंटम हो गया, वो mu है, और ये लौट के चला जाता है mu. सो द चेंज इन द मोमेंटम इज द ट्वाइस mu minus mu of the minus mu. So this gives change in momentum is twice mu. तो एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन होता है ट्वाइस mu. तो दाब होता है संवेग में परिवर्तन, कुल परिवर्तन डिवाइड बाय आयतन इनटू द वेग, बिकॉज प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. सो यूजिंग दिस वन वी हैव कैलकुलेट P इक्वल टू P बाई दिस वन डी पी बाई डी टी. ये तो प्रेशर हो गया, force हो गया, and the 1 by area. So this is the dp by the volume. So the dt equal to like this one. So finally we can write dp by the volume into the u. So संवेग में परिवर्तन कितना आएगा, summation in between the 0 to infinity nu twice mu of the u. So this gives nu twice mu square 0 to infinity. nu का मान रखने पर हमने कैलकुलेट कर रखा है. So P equal to 0 to infinity twice m n e raised to power minus b square u square du, and there is the constant, that is the constant integral, and that is considered definite integral is there, standard integral is there, 0 to infinity e raised to power minus b square du square du. And earlier we have calculated 1 by 4 pi by b cube or 1 by 2. So this gives the बराबर twice m n e by the 4 pi or half b 3 by 2
और हमने ये भी कैलकुलेट कर रखा है, a इक्वल टू रूट ऑफ द पाई बाई बी। तो a का मान भी रख देते हैं अपन। तो रिजल्ट मिलता है हमें एम एन बाई द टू बी बाई पाई पावर हाफ बी 3/2। सो कैलकुलेट किया कर दिया जाए p इक्वल टू एम एन बाई द टू बी, परंतु हमने कैलकुलेट कर रखा है थर्मल के हिसाब से p इक्वल टू एन के टी। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द फ्लो टेम्परेचर। सो दोनों इक्वल कर दिया जाए, b इक्वल टू आ गया हमें m बाई टू के टी। सो TNC विल बी गिव 4 पाई n a क्यूब e रेज़ टू पावर माइनस b c स्क्वायर d c को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, a b तो 4 पाई n p बाई पाई 3/2 e रेज़ टू पावर माइनस b c स्क्वायर d c इन टर्म्स ऑफ द b हो गया। और इसको यदि हम के टी टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो 4 पाई n पाई 3/2 m बाई 2 के टी 3/2 e रेज़ टू पावर माइनस m c स्क्वायर 2 के टी c स्क्वायर d c। So finally we can write dnc equal to 4 pi n m by 2 pi kt 3/2 e raised to power minus c square by the 2 kt c square dc. This is Maxwell distribution law for the velocities, or mostly we can use this one is for the speeds. Now we can conclude that some निष्कर्ष इसके जो प्राप्त होते हैं, Maxwell distribution law dnc equal to the 4 pi n m by 2 pi kt 3/2 e raised to power minus mc square by the 2 kt c square dc। c व c प्लस dc के मध्य होने की प्रायिकता जो होती है fc dc, दैट इज dnc by the c 4 pi multiplied by the m by 2 pi kt 3/2 e raised to power minus mc square 2 kt c square dc। और इसको ग्राफ के साथ प्लॉट करें अपन dnc by the dc, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन पर हॉरिजॉन्टल में c हो तो इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है, और c और dc के मध्य एक कर्व प्राप्त होता है। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एरिया जितना आएगा वो हमारा इस अणुओं की संख्या आ जाएगी प्रत्येक का मैदान। ताप के साथ परिवर्तन देखें तो हमें इस तरह से प्राप्त होता है dnc बाई द dc t1 t2 t3 t3 इज ग्रेटर देन t2 एंड दिस इज ग्रेटर देन, मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ते जाएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी जो पाई जाने की वो कम होती जाएगी। सो इसका उपयोग करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज कैलकुलेट करने के लिए। पहला हम निकालते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड। c बार इक्वल टू 1 बाई n 0 to इन्फिनिटी c dnc, हमने c का औसत निकाल लिया, मीन्स टोटल कणों की संख्या है n, और जो टोटल वेग आ जाते हैं टोटल चाल आ जाएगी 0 to इन्फिनिटी के बीच में c dnc हो जाता है। सो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए dnc की, जिसे अपने पहले कैलकुलेट किया था 4 पाई n b बाई पाई 3/2 e माइनस बी स्क्वायर c इंटू सी स्क्वायर डी सी। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट इंटीग्रल आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है, वो आ रहा है हमारा सी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस बी सी स्क्वायर डी सी। और हमें एक स्टैंडर्ड टेबल बना रखी है कि समझने के लिए कि देखिए जब एन क्यूब ई रेज़ टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन डी एक्स हो, तो यदि एन की वैल्यू 0 हो, मतलब केवल माइनस ई रेज़ टू पावर बी एक्स स्क्वायर हो, तो इसका जो वैल्यू आती है रिजल्ट आता है 1/2 पाई बाई बी का पावर हाफ आता है। यदि 1 हो, एक्स की पावर 1 हो तो 1/2 भी आता है, एक्स स्क्वायर हो तो 1/4 पाई बी क्यूब 3/2 आता है 1/। और यदि 3 हो, एक्स क्यूब हो तो 1/2 बी स्क्वायर आता है। तो हमारे यहाँ केस में c क्यूब है, 3 पावर है, सो दिस इज 1/2 बी स्क्वायर। सो c बार इक्वल टू 4 पाई बी 3/2 पाई 3/2 टू बी स्क्वायर, एंड दिस गिव्स c एवरेज इक्वल टू 4 बाई पाई बी पावर हाफ, और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं m/2 kt, सो दिस गिव्स c बार इक्वल टू 8 kt बाई द पाई m पावर हाफ। नेक्स्ट RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, c RMS इक्वल टू लिखते हैं अपन सी स्क्वायर का जैसे डेफिनेशन है, पहले हम स्क्वायर करेंगे फिर मीन लेंगे फिर रूट लेंगे। तो स्क्वायर का मीन सी बार सी स्क्वायर का बार एंड द रूट 1/2। सी बार को हम लिख सकते हैं, औसत निकालना है वही तरीका पड़ा 1/n 0 to इन्फिनिटी सी स्क्वायर डी एन सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, सेम कंडीशंस। So CRMS equal to finally on rearranging we can write this using the integral, definite integral, standard integral 0 to infinity c for e raised to power minus bc square dc, that is 3/8 pi b pi power half. So rearranging we can obtain CRMS square equal to 3/2 b and b equal to m/2 kt. So substituting we can obtain CRMS equal to root of 3 kt by the m, and the similarly most probable speed
क्या डेफिनेशन है इसकी? सर्वाधिक अणु जिस चाल से गति करते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। अधिकतर जो पुराने टाइम में रिजल्ट आते थे वो ये था कि सेकंड डिवीजन बच्चे जाते थे, तो मोस्ट प्रोबेबल डिवीजन कौन सा हो गया? सेकंड, जो अधिकतम बच्चे ग्रहण करते हैं। डेफिनेशन तो हो गया ना, इसका डेफिनेशन देखते हैं कि मैक्सिमम हमें चाहिए, अधिकतम चाहिए। इसका मतलब हुआ कि DFC का जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो जीरो होना चाहिए। सो DFC विथ रिस्पेक्ट टू DC इक्वल टू जीरो। सो FC इक्वल टू 4 पाई n a क्यूब e raised to power minus BC square t square. So substituting the value of this one we can obtain, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट होने वाली दो टर्म्स है e raised to power minus BC square into the C square. सो पहले हमें C स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, e raised to power minus BC स्क्वायर का इंटीग्रेट किया, डिफ्रेंशिएट किया तो ट्वाइस BC आ गया और e raised to power minus BC स्क्वायर आया। इसी तरह से C स्क्वायर किया तो 2C हो गया इसका। सो दिस गिव्स 1 minus BC square equal to 0, C equal to root of B, and so C maximum probable most probable स्पीड आ जाएगी आपकी 1 by B power half। B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए m by 2 kt, so this gives C maximum equal to 2 kt by the m power half। so जो सबसे कम वैल्यू है मोस्ट प्रोबेबल की है कितनी है? रूट मल्टीप्लाई kt by m power half। इसी तरह से सी एवरेज आता है वो 8 बाई पाई, बाकी तो सब चीज़ सेम है। इन द CRMS √3 इंटू द KT by the m, so this is the same conditions। so we can write this is ratio is 1 raised to 1.128 1.224। so DNC और DC के बीच में अगर आप प्लॉट करें तो इस तरह से प्राप्त है। C मोस्ट प्रोबेबल बीच में आता है, मतलब पीक पे ज़्यादा संख्या होती है, फिर उसके बाद C बार आता है और then finally CRMS। so this is the value or the applications of the most, that is the Maxwell law of distribution, the velocities or the speed। so this is sufficient for today. Thank you very much।